Welcome students, this is our third lecture from chapter number 2, support and movement. As I have told you earlier that this chapter, we are going to study this chapter in two parts. First we are going to understand about support and later we will study about movements. So सपोर्ट के टॉपिक में हमने तमाम के तमाम सपोर्ट फैक्टर्स पढ़ लिए हैं कि कितने टिश्यूज़ होते हैं, किस तरीके से प्लांट सपोर्ट हासिल करता है अपने टिश्यूज़ के थ्रू एंड मेंटेन करता है अपनी शेप को. So in this lecture we are going to understand about how movements happen in plant. Firstly we need to understand why any organism move or why in the body of any organism movements happen. Movement is actually a response due to the factor that is called as irritability. Irritability is a factor that you can simply understand by the fact कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब वो एक एक्साइटेटरी इफेक्ट फील करे और उसको ओवरकम करने के लिए जब कोई अमल करे तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इरिटेबिलिटी. और इस फैक्टर को ओवरकम करने के लिए जो काम हो रहा होता है उस काम को हम कहते हैं कि ये मूवमेंट है. So due to the irritability, movement happens, and irritability comes by the word or by a factor which you call as stimuli. Well, what is stimuli? Stimuli is any detectable change. We will go through it again. Why movement happens? To overcome irritability, and from where irritability arises? From stimuli. Stimuli जो है वो एक चेंज है जो कि किसी भी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के आइदर अंदर फील करे और आइदर इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फील करे, बट इट डज फील इट एंड ओवरकम दैट इरिटेबिलिटी दैट कम्स ड्यू टू द स्टिमुलाई, मूवमेंट हैपेंस. ठीक है. अब ये मूवमेंट जो है वो प्लांट अपने सराउंडिंग में अगर आप देखें तो you won't say that plants move. So there are two terms that are very much related to the movement. One is locomotion and other one is movement. So locomotion is a term that we usually can relate or do relate to the animals. ठीक है. Animals do locomote, they move from one place to another. ठीक है. While movement is a terminology that we use most of the time with the plants when we study biology, but in a layman language or in a daily life you can use both the terms, or you do use both the terms in any way possible or in any way you want. But movement happens in the plant, mostly movement. Locomotory effect does come in the plant but in a very limited aspect. अब अगर आप मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट भी आप कहेंगे कि भाई प्लांट है, मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, प्लांट तो एक ही जगह खड़े रहते हैं. आप अपने सराउंडिंग्स में प्लांट देखते हैं, हाउ डू दे मूव? यू वोंट सी एनी मूवमेंट्स इन व्हेन यू सी इट अ वेरी कैजुअल आई, और व्हेन यू डोंट सी इट विद द आईज ऑफ अ बॉटनिस्ट और विद द आईज ऑफ अ बायोलॉजिस्ट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट मूवमेंट्स हैपन इन द प्लांट एंड देयर आर बेसिकली two types of the movements. This is a chart that will help you understand that how many types of movements in the plant, and it will help you understand it and learn it in a better way, and it is better to draw it or copy it in your book or journal which you keep it by your side while you see this video lecture. So kindly draw it and keep it with you. Now we will go through the chart in a very summarized way, then you will understand each and every single terminology separately. So there are two types of movement. Firstly spontaneous and second induced. Spontaneous movement is also termed as autonomic movement, while induced movement is also termed as paratonic movement. There are three types of spontaneous movement. As the word indicates, spontaneous, and it can happen just spontaneously, not a very planned one, or it doesn't moreover it doesn't require any external stimuli. This movement happens due to internal stimuli that arises inside the body of an organism or inside the organelle or inside the cell. So there are three types of spontaneous movements: movement of locomotion, growth and curvature, and variation movements.
Further, you can divide growth and curvature movements in two types, nutation and nastic. There are further two types of nastic movement, epinastic and hyponastic. We will going to continue the details of spontaneous movement in this lecture, and will further continue induced movement in another lecture. So we will go through it again. Spontaneous movement are those types of movement which does not require any external stimuli. It does happen due to the stimuli that arises or that creates or that is being produced inside the body of an organism or inside the cell or inside the any organelle. So further we will go through it. Movement of locomotion. Movement of locomotion क्या है? जब आपको सेल पढ़ाया था तो ये बताया गया था कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है. सो दैट प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज नॉट इन एनी स्टैटिक कंडीशन. इट डज मूव. ऑर्गेनल्स जो हैं उसके अंदर वो भी मूव कर रहे होते हैं बिकॉज इट इज़ अ सेमी लिक्विड कंडीशन, जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है प्रोटोप्लाज्म की. सो इट डज मूव इन अ सर्कुलर मोशन इनसाइड द सेल. दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस. सो दैट मूवमेंट इन द सेल comes under the heading of movement of locomotion. While oscillatory movement, now what is oscillatory movement? Oscillatory movements are the movement that are related. If you want to define it और अगर हम इसका तर्जुमा करना चाहें तो oscillatory movement उस movement को कहते हैं जिसके अंदर कोई body back and forth continuous move कर रही हो in a rhythmic pattern. ठीक है, इस तरीके से जैसे कि घड़ियाल के जो बड़े बड़े वो होते हैं, घड़ियाँ होती हैं दीवारों के ऊपर लटकी हुई, ओल्ड फैशन वन, उसके अंदर किस तरीके से मूवमेंट होती है घड़ियाल की, इस तरीके से, राइट. और अगर हम बायोलॉजी की एग्जाम्पल लें तो ज़रा अपने दिमाग को पीछे की तरफ लेके जाएं और सोचें कि यूग्लिना के अंदर होते हैं क्या, फ्लैजिला होते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर सम बैक्टीरियाज ऑल्सो हैव सीलिया ऑन द बॉडी ऑफ दैम. सो दैट सीलिया की मूवमेंट जो है ज़्यादातर कैसे होती है, इन अ कंटिन्यूस रिदमिक पैटर्न जस्ट लाइक दिस. इट डज मूव इन अ रिदमिक पैटर्न बैक एंड फोर्थ. So that movement is termed as oscillatory movement. I hope you guys are understand this, and if you are not understanding it, go through it again and again in this lecture and you will get it with the passage of time. Nutation. Now अब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की. ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर आपको वर्ड से पता चल रहा है कि मूवमेंट जो है वो ग्रोथ रिलेटेड है. प्लांट की ग्रोथ जब हो रही है तो जो ऑर्गन्स हैं प्लांट के वो एक्चुअली मूव किसी अमल के तहत मूव हो रहे हैं. सेल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तभी कोई शाख इस तरफ बढ़ रही है. सेल्स फिर एक दूसरी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं तभी जो है शाख इस तरफ जा रही है. इसकी ज़रूरत क्यों है, पहले तो हम यही सोचेंगे. अगर नहीं सोच रहे तो सोचें. आप दरख्त को देखें अगर कभी तो ऐसा नहीं देखेंगे आप कि तमाम शाखें एक ही तरफ को उगे चले जा रही हैं. एंड लेट्स सपोज कि अगर ऐसा हो तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद एक तरफ का जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा और फिजिक्स के एस्पेक्ट से आप देखें वेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इवनली. सो इवेंचुअली द ट्री विल फॉल आउट. सो टू मेंटेन द बैलेंस इन द बॉडी ऑफ अ प्लांट, इवन इन अ लोअर प्लांट, हर्ब, shrub, or even in tall tree, it is very important to maintain a balance in the body. Every organism in this world has a balanced body to survive, to move, to locomote. Otherwise, it wouldn't be able to move. How it would be able to stand with the environment, with the air pressure, with all the things? So, growth होते वक्त जो मूवमेंट होती है, ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रही है या ग्रोथ के लिए सेल्स जो मूवमेंट कर रहे हैं उसे हम ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट कहते हैं. कर्वेचर यानी एंगल्स और जो पैटर्न और जो एक डायरेक्शन डिसाइड हो रही है, आइदर कर्व्ड है, आइदर एलोंगेटेड है, इस तरफ बेंड हुई हुई है, बाहर की तरफ बेंड हुई हुई है शाख या पत्ता, इसको हम कहते हैं कर्वेचर. तो इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, नुटेशन एंड नास्टिक. ऑल्टरनेट चेंज इन द ग्रोथ रेट, इसकी वजह से जब मूवमेंट होती है तो इसे हम कहते हैं न्यूटेशन. ऑल्टरनेट चेंज ग्रोथ रेट कहाँ पे, अगर प्लांट के एपेक्स के शूट के एपेक्स के ऊपर किस अपर साइड पे यानी एक तरफ शाख बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उसके रिस्पॉन्स को ओवरकम करने के लिए यानी बैलेंस आउट करने के लिए दूसरी तरफ भी शाख बढ़ेगी, राइट. टू बैलेंस आउट द बॉडी जब ग्रोथ होती है प्लांट के एपेक्स में और जिग जैग मूवमेंट के अंदर जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं
न्यूटेशन मूवमेंट, राइट। आप प्लांट को अगर आप देखें, आप नॉर्मली कभी ड्रॉ करें पत्ता या शाख, तो ये ऐसे ही करते हैं ना, एक इवन दो हमने उस वक्त ये नहीं पढ़ा होता बचपन से ही, लेकिन हम फिर भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। गॉट इट? सो दिस पैटर्न, दिस zigzag movement, this zigzag growth pattern comes under the topic of notation. Further, Nastic movement. Difference in growth rate. जब growth rate की वजह से कोई मूवमेंट हो तो उसको हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। ये आप इसकी एग्जाम्पल आप लेंगे बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स जो है, फूल जब खिला नहीं होता तो जो पत्तियां हैं वो बंद होती हैं। अब अगर ये पत्तियां ऊपर की तरफ इनकी जो है वो मूवमेंट होगी, ग्रोथ पैटर्न सेल्स ऊपर की तरफ डिवाइड करेंगे तो फिर ये बैंड होना शुरू हो जाएंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ पड़ेंगे तो ये पत्तियां बंद ही रहेंगी। सो दैट इज़ वाई दीज मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सेल बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग of birds, and this movement you can also observe in a plant, in Indian telegraph plant. इस प्लांट के अंदर आप ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि इनके जो पत्ते होते हैं उनकी नोट्स के ऊपर आपको मिलेंगे मोटर सेल, लार्ज साइज ये सेल्स होते हैं। as this example is not mentioned in your textbook, but for the knowledge, for the sake of knowledge, for the information, you need to have better examples and more examples. सो इस प्लांट के अंदर पत्तों की शाखों के नोड्स के ऊपर इस तरीके से पत्ते हैं, तो यहाँ पे मोटर सेल्स होते हैं, लार्ज साइज सेल्स होते हैं पैनकाइमेटस। जब ये वाटर रिलीज करते हैं अपने सराउंडिंग सेल्स के अंदर, तो जो टर्जिडिटी है वो रिलीज हो जाती है किसकी? सेल्स की। कौन से सेल्स की? पत्तों के सेल्स की, क्योंकि वाटर आगे या पीछे मूव कर चुका है सेल्स के अंदर। इस तरीके से पत्ते जो है वो अपनी टर्जिडिटी लूज कर देते हैं और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं फ्लेसेड, लटके हुए। तो दिस हैपन्स इन अ वेरी फ्रिक्वेंट वे। तो पत्ते ऊपर होते हैं, यानी टर्जिडिटी मेंटेन करते हैं, खुलते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर खुलते हैं, फिर बंद होते हैं। दिस ऑल्सो कम्स इन द हेडिंग ऑफ नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। वेरिएशन मूवमेंट, यू कैन ऑल्सो सी वेरिएशन इन द चेंज इन द टर्जिडिटी। आप जब ये टर्जिडिटी की हम बात कर रहे हैं तो इसी इंडियन टेलीग्राफ प्लांट की एग्जाम्पल को हम लेते हैं वेरिएशन मूवमेंट में भी, ठीक है। इसको आप दो जगह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि ये मूवमेंट हो रही है और हमने इसको नास्टिक मूवमेंट कहा क्योंकि इसमें बात आ गई है, अब टर्जिडिटी की भी बात आ गई है, तो फिर हम इसको लेते हैं वेरिएशन के अंदर। तो जो पीरियोडिक चेंज इन वेरिएशन है, पीरियोडिक मुसलसल चेंज आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आ रहा है और फिर नॉर्मलाइज हो रही है कंडीशन, फिर टर्जिडिटी लूज हो रही है, फिर नॉर्मलाइज हो रही है कंडीशन। तो इस चेंज की वजह से भी जो मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं वेरिएशन मूवमेंट। नाउ अगेन दिस हेडिंग इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक, बट यू कैन राइट इट एज एवरी बॉटनिस्ट नोज अबाउट इट। सो डोंट गेट वरी कि आप एग्जाम में क्या लिखेंगे और क्या नहीं, यू कैन राइट इट। अब हम बात करते हैं इन दो टाइप्स की, क्योंकि हमने नास्टिक मूवमेंट्स तो पढ़ ली लेकिन इन टाइप्स को डिफाइन नहीं किया है अभी। तो जब हम एपिनास्टिक और हाइपोनास्टिक की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जब अपर पार्ट, किसी बॉडी का अपर पार्ट अगर सेल डिवाइड करके इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ डिवीजन हो रही है, ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एपिनास्टिक। और अगर नीचे की साइड वाले सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और नीचे की तरफ वाले सेल्स के अंदर ग्रोथ हो रही है तो इसको हम कहते हैं हाइपोनास्टिक। सो एपी एंड हाइपो एज द टर्म इंडिकेट्स, एपी मतलब ऊपर, अपर साइड, while hypo means lower side. So this lecture, we are going to conclude this lecture here, and we will continue the next type of movement, induced movement, in our second lecture. Hope you students have understand this lecture. So we will see you in our next lecture. See you guys.